Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara. Guru Sakshat Param Brahma, Tasme Shri Gurve Namaha. The Guru is Brahma, the creator, Vishnu, the preserver, and Mahesh, Shiva, the destroyer. The Guru is truly the supreme God, and I bow down with respect to that holy teacher. Good morning to one and all present here. As you all know, we have gathered here today to celebrate the festival of Guru Nanak Jayanti. I am honored and extremely happy to welcome our honorable chief guest, Dr. Pink Prabha, retired associate professor, Vash College, Rohtak. Dignified Director Ma'am Mrs. Shweta Tayal, respected Principal Ma'am Mrs. Sushila Gulia, Vice Principal Ma'am Mrs. Mamta Dattarwal, academic in charges, all teachers, non-teaching staff, and my dear friends. The real purpose of celebrating festivals is to help us connect to our rich tradition and cultural roots. Guru Nanak Jayanti, also known as Guru Purav, is one of the most sacred festivals celebrated by Sikhs all over the world. It marks the birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji, the first Guru Dev and the founder of Sikhism. Guru Nanak Dev Ji taught us to live with honesty, kindness and love for all. He believed that God is one and all human beings are equal no matter their tradition, region or caste. On this day, Gurudwaras are beautifully decorated with flowers and lights. Devotees take part in Prabhat Faris, singing hymns in early morning. And Langar or community kitchen serves food to everyone, spreading the message of sharing and selfless service. The whole atmosphere is filled with peace and gratitude. This week, we also celebrate Children's Day, a day that reminds us of the love and affection that Pandit Jawaharlal Nehru had for children. Children's Day and Guru Nanak Jayanti both teach us beautiful lessons: to stay pure at heart, to be truthful, to help others, and to spread happiness wherever we go. As children, we can follow Guru Nanak Dev Ji's teaching by speaking kindly, sharing with others, respecting everyone, and always doing good deeds. Just as Guru Nanak Dev Ji's light spread peace and love, may our smiles and action make the world a brighter place too. To honor his divine teachings and eternal message, we now present a heartfelt Guru Bhajan mashup, a musical offering that celebrates the purity, love and wisdom of Guru Nanak Dev Ji. Each note, each rhythm echoes his message of truth, humility and compassion. Dear friends, let us take a moment to feel the divine presence within us. Close your eyes, join your hands and open your hearts to the sacred vibrations of the Guru's words. Let this melody fill your souls with peace and guide you toward light and goodness. As we listen, may we find strength to follow his message of Nam Japna, Kirat Karna and Vand Chakna, remembering God, working honestly and sharing with others. With deep respect and devotion, we now invite our talented singers to take us on this sun and spiritual journey through their melodious voices. May this performance remind us of the values Guru Nanak Dev Ji lived for: love, equality, faith and truth. As we celebrate this sacred Guru Purv, let us promise to carry his teachings in our hearts and practice them in our daily lives. May his divine light always guide us towards kindness, understanding and unity. Let this music awaken the spirit of devotion within us and fill the atmosphere with peace, joy and gratitude. What a truly soul-stirring performance. The voices of our students have filled this soul with divine energy and peace. Every note reflected the love,
faith and teachings of Guru Nanak Dev Ji. It felt that if his blessings were showering upon us through this beautiful bhajan. Absolutely. This wonderful Guru Bhajan has touched our hearts and reminded us the timeless message of Guru Nanak Dev Ji to live with truth, compassion and equality. May his divine light continue to guide us on the path of goodness and harmony. Let us give a huge round of applause to our talented singers to present such a soulful and inspiring performance. बचपन है मुस्कान की माला, हर दिन हो जैसे उजियाला, खेल कूद में मस्त ये बच्चे, सबको लगते फूल से सच्चे। नन्हे हाथों में सपने प्यारे, मन में खुशियों के उजियारे, पढ़ो ज्ञान की राह पर चलते जाएं, देश का नाम सदा बढ़ाएं। चाचा नेहरू करते थे प्यार, बच्चों को मानते थे उपहार, उनकी याद में मनाते हम बाल दिवस हर साल भर। बच्चों तुम हो देश के तारे, सपनों को सच करना तुम्हारे, पढ़ो बढ़ो और आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो। My dear friends, every celebration becomes truly special when filled with smiles, laughter and joy. And what could be the more delightful than celebrating the spirit of childhood itself? As we honor the innocence, creativity and boundless energy that make our children the true treasures of the world. Absolutely. Children's Day is celebrated every year on 14th November, the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, lovingly known as Chacha Nehru. He believed that children are the real strength and future of a nation. This day reminds us to nurture their dream, protect their happiness, and encourage them to explore their talents. Yes, and to celebrate this joyful occasion, we know to bring you a Children's Day mashup dance. This will showcase the fun, innocence, and the colorful world of the childhood. Laughter filled with games to the endless dream that light up young hearts. Through music and dance, our young performers will spread a message that every child deserves love, care and freedom to shine. So dear audience, get ready to be filled with joy and nostalgia. Let's welcome our amazing dancers with a big round of applause as they take us on the vibrant journey through songs that celebrate childhood, happiness and imagination. Let's cheer loudly as the stage comes alive with rhythm, smiles and spark of the youth. Here comes an energetic and heartwarming Children's Day mashup dance. Wow, what an energetic and heart-touching performance. The enthusiasm, smiles and lively moves of our young dancers truly reminded us the joy and magic of childhood. Indeed, the Children's Day mashup dance just was the more than the dance. It was a reminder that every child is a bundle of joy, a spark of hope, and a dream that was waiting to be blossomed. Their laughter is the music that makes the world happier place. So let's give a thunderous round of applause to our wonderful performers for spreading so much happiness and positivity today. May every child continue to shine bright, dream big and fill the world with their light and laughter. Happy Children's Day to all the little stars. You make this world A brighter, better and more beautiful place. सतगुरु नानक देव जी के पवित्र उपदेश हमारे जीवन को रोशनी से भर देते हैं। उन्होंने सिखाया कि दया, सेवा और सच्चाई से धर्म कोई नहीं। गुरु पर्व की इस पावन बेला पर हम सब मिलकर उनके संदेशों को याद करेंगे। वो संदेश जिन्होंने मानवता की राह को उजाला दिया। तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र है। उन्होंने बताया कि
असली सौदा वह है जिसमें हम दूसरों के काम आए। उन्होंने सिखाया कि सच्चा लाभ किसी को दुख से राहत देने में है, न कि धन इकट्ठा करने में। बिल्कुल सही कहा। जब गुरु नानक देव जी के पिता ने उनको व्यापार के लिए पैसे दिए तो उन्होंने उन पैसों से भूखे साधुओं को भोजन कराया, बीमारों की सेवा की, और फिर जब उनके पिता ने पूछा व्यापार कहाँ किया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने सच्चा सौदा किया है। यही था सेवा, करुणा और प्रेम का व्यापार, सच्चा सौदा। गुरु नानक देव जी ने यह भी बताया कि जब हम दूसरों के सुख दुख बांटते हैं तब हमारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। उन्होंने यह संदेश भी दिया, सभी मनुष्य एक हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा, ईश्वर हर किसी के दिल में बसता है। हाँ, उनका यह सिद्धांत आज भी हमें सिखाता है कि जात पात, धर्म या भेदभाव से ऊपर उठकर हमें इंसानियत का साथ देना चाहिए। गुरु जी ने 3 मूल सिद्धांत दिए हैं, नाम जपो, किरत करो और बंट छको। यही है जीवन का असली सच्चा सौदा। गुरु जी ने सिखाया कि इंसान की असली दौलत धन नहीं बल्कि प्रेम और करुणा है। जब हम सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं तब हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें बताता है कि सच्चा सौदा किसी दुकान में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में होता है। जब हम किसी को खुश करते हैं, किसी की आंखों में मुस्कान लाते हैं, यही सबसे बड़ा लाभ है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सच्चा सौदा करेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे और प्रेम और समानता का संदेश फैलाएंगे और हर ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। और अब तालियों की गूंज के साथ स्वागत कीजिए हमारे प्रिय साथियों का, जो आज गुरु नानक जयंती पर एक सच्चा सौदा का एक्ट करने जा रहे हैं। वाह, कितनी प्रेरणादायक और भावनात्मक प्रस्तुति थी। हमारे साथियों ने सच्चा सौदा को जिस तरह से प्रस्तुत किया है उसने दिल को छू लिया। आज हमने सीखा कि असल कमाई धन की नहीं बल्कि आपके कर्मों की होती है। सचमुच गुरु नानक देव जी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा करना है और जो प्रेम बांटता है वह सच्चा भक्त है। यदि हर व्यक्ति गुरु जी की सीख पे अपनाए तो संसार में न कोई दुख रहेगा, न भेदभाव। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सब में ज्योत ज्योत है सोई, नींद का चानन सब है होई। अर्थात हर जीव में वही ईश्वर का प्रकाश है। हमें हर व्यक्ति में उस प्रकाश को पहचानना चाहिए। तो आइए इस गुरु पूर्व पर हम सब संकल्प लें कि हम गुरु जी की राह पर चलेंगे, सत्य, प्रेम और सेवा की राह पर। यही है सच्चा सौदा, यही है जीवन का वास्तविक अर्थ। तो दोस्तों मिलकर पुकारे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सत श्री अकाल प्यारे साथियों, गुरुपुर्व का ये पावन अवसर श्रद्धा, भक्ति और शांति का प्रतीक है। आज का दिन हमें गुरु नानक देव जी की उस दिव्य शिक्षा की याद दिलाता है जिसने पूरी मानवता को सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना सिखाया है। हर वर्ष गुरु नानक जयंती की सुबह प्रभात में फेरी से शुरू होती है, जब श्रद्धालु भक्ति भाव से सड़कों पर कीर्तन करते हुए निकलते हैं। वाहे गुरु की पवित्र वाणी वातावरण में अद्भुत शांति और सकारात्मकता भर देती है। प्रभात फेरी केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। बिल्कुल सही। गुरु प्रभात फेरी हमें यह सिखाती है कि हर नया सवेरा केवल सूरज की रोशनी नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम की रोशनी से भी उजाला होता है। जब गुरु की वाणी गूंजती है तो मन में श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। और आज हम उसी आध्यात्मिक अनुभव को मंच पर जीवित करने जा रहे हैं। हमारी प्रस्तुति गुरु प्रभात फेरी मंडली भक्ति और शांति का संगम है। हमारे कलाकार भक्ति संगीत की धुनों पर नृत्य के माध्यम से गुरु नानक देव जी की महानता और उनके संदेश को
अभिव्यक्त करेंगे। हर कदम, हर लय और हर मुस्कान में गुरु जी के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता झलकेगी। यह प्रस्तुति हमें याद दिलाएगी कि गुरु नानक देव जी की शिक्षा केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन की सच्चाई है। सत्य बोलना, ईमानदार होकर काम करना और दूसरों के साथ बांटना। तो आइए अपनी जोरदार तालियों से मंच को पावन बनाइए और प्रस्तुत और स्वागत करें उन नन्हे कलाकारों का जो अपने नृत्य के माध्यम से गुरु नानक देव जी की भक्ति की भावना को जागृत करेंगे। प्रस्तुत है गुरु प्रभात फेरी मंडली, भक्ति, प्रेम और एकता को समर्पित एक विशेष नृत्य। वाह, क्या अद्भुत प्रस्तुति थी। हमारे नन्हे कलाकारों ने जिस श्रद्धा और भाव से गुरु प्रभात फेरी का वातावरण मंच पर उतारा, उसने हर दिल को छू लिया। सचमुच यह नृत्य केवल एक क्षण भर का मनोरंजन नहीं था, बल्कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का जीवित संदेश था। हम सबको एक ही ज्योति है और वही हमें प्रेम, दया और सत्य की राह पर चलाना सिखाती है। आइए एक बार फिर जोरदार तालियों से अपने कलाकारों का सम्मान करें। उन्होंने इस मंच को भक्ति और ऊर्जा से भर दिया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। Now it's time to hear from the guiding light of today's celebration. We are deeply honored to have with us our respective chief guest, Dr. Pink Prabha, whose achievements and values are a true inspiration. We now invite our chief guest to grace the occasion with their thoughts and words of wisdom. And I request all present here to please welcome our chief guest with cheerful applause. स्कूल के डायरेक्टर श्वेता जी, प्रिंसिपल सुशीला जी और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। बच्चों, आज आप सबको मालूम है कि आज चिल्ड्रन डे है। हिंदी में क्या कहते हैं? बाल। वेरी गुड। तो और आज सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की भी जयंती है। तो आप सबको बाल दिवस और गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चों के साथ आज मेरी बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। आप सब बच्चों के चेहरों की मुस्कान देखकर और चेहरों की चमक देखकर ऐसा लगता है जैसे सुंदर सुंदर फूल अपने सारे वातावरण को महका देते हैं। उसी प्रकार आप छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, खूब पढ़ लिख कर मेहनत करके बड़े होकर कुछ बन जाएंगे, तो आप भी अपने परिवार, अपने विद्यालय और अपने समाज को ऐसे ही रोशन करेंगे। अपने व्यक्तित्व की खुशबू से अपने देश को महका देंगे। जिस प्रकार बच्चों छोटे छोटे बीज समय आने पर विशाल वृक्ष बनते हैं, उसी प्रकार आप सब बच्चे भी उसी छोटे छोटे बीज के जैसे हैं। जब समय आने पर आप सभी बच्चों में से कोई डॉक्टर बनेगा, बनोगे ना? पढ़ लिख के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्लेयर बनेगा, तो कोई महान लीडर भी बनेगा। तो आप सब बच्चों ने जो है अब बच्चों इस छोटी एज में ही आपने जो कुछ सीखना है अभी सीखना है, क्योंकि इस एज में ही जो बच्चे अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छे अच्छे गुण सीखते हैं, उसी के बेस पे ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। अगर आप अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे तो आप एक अच्छा इंसान बनेंगे,
और बुरी बातें सीखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे तो बुरा इंसान बनोगे। आपको कैसा बनना है? अच्छा इंसान। आप तो उस कुम्हार की गीली मिट्टी के जैसे हैं जिसको कुम्हार अपना मन चाहा आकार दे सकता है। वो चाहे तो उससे मटका बना सकता है, छोटी सी मटकी बना सकता है, बनाता है ना, छोटे से दिए बना सकता है। तो आप भी उसी गीली की मिट्टी जैसे हैं और आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको सही आकार देने में लगे हुए हैं, है ना। लेकिन बच्चों, मैं आपको यहाँ ये बात बताना चाहूँगी कि केवल पेरेंट्स और टीचर्स के बनाने से, प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। पढ़ना तो आपने है ना, मेहनत आपको ही करनी है। आपको लाइफ में एक गोल सेट करना है। गोल समझते हो क्या होता है? एम, एम्बिशन, कि मुझे जीवन में कुछ बनना है। और वो केवल गोल सेट करने से अचीव नहीं होगा। आपको उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत। आपको डिसिप्लिन में रहते हुए डिटर्मिनेशन के साथ और अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है। हर बच्चे में, बच्चों में यहाँ बताती हूँ, हर बच्चे में एक टैलेंट जरूर होता है, कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है। कोई बच्चा अच्छा गाता है, कोई बच्चा अच्छा लिखता है, कोई अच्छा प्लेयर होता है, किसी की साइंस में रुचि है, किसी की मैथमेटिक्स में रुचि है, होती है ना। बस आपको एक्सप्लोर करना है कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है। बस आपने उसकी ब्रशिंग करनी है, उस पर फोकस करना है, फिर देखो आप जीवन में कैसे सफल हो जाते हो। अगर आपकी साइंस में रुचि है तो आप हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हुए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नाम सुना आपने? आप उनके आदर्शों को फॉलो कर सकते हैं। उनके द्वारा लिखी गई एक बुक है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। आप उसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर इसी तरह आपका किसी स्पोर्ट्स में आपका ध्यान है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हुए हैं, मेजर ध्यानचंद हुए, सचिन तेंदुलकर, समझते हो ना आप, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, नीरज चोपड़ा, नाम सुने आपने? आप उनके आदर्शों को अपना सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं सेवा और त्याग की बात करूं तो आप हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों को अपना सकते हैं। कुछ भी आप बन सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। उसके बाद बेटा, पढ़ाई के साथ साथ आपने अपनी हेल्थ को भी संभालना। हम इसकी भी बात जरूर करेंगे कि ऐसा नहीं कि हम सारा दिन पढ़ते ही रहेंगे। भाई आपने पढ़ना बताया, हम पढ़ते ही रहेंगे, हेल्थ को इग्नोर करेंगे, नो। आपको अपनी हेल्थ भी बराबर संभाल के रखनी है। उसके साथ क्या है? पढ़ने के बाद सारा दिन में 1-1.5 घंटा आपको खेलना भी है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, और सबसे जरूरी बात, आपको हेल्दी डाइट लेनी। आप क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन खाते हैं ना? चलो हाथ खड़े करो, कल से जो बच्चे पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे, जो नहीं खाएंगे। शाबाश, बड़े ऑनेस्ट बच्चे हैं। वेरी गुड। तो बच्चों, मेरा यहाँ कहने से मतलब है कि अगर हम अपनी हेल्थ को नहीं संभालेंगे तो जो हमने गोल सेट किया था जीवन में, आगे बढ़ने के लिए, तो उसको अचीव कैसे करेंगे? तो आपने अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना है। हमने जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, समझ आ गई? और उसके बाद तीसरी बात आती है हमारी मॉरल वैल्यूज़ की। हम कितना भी बड़ा पढ़ लिख जाएं, अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है, मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, तो हमारा अच्छा व्यक्तित्व नहीं बन सकता। और हमारी मॉरल वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होती हैं? हमारे घर से। सुबह जब हम उठते हैं, जल्दी आपने समय पर उठ के तैयार होना है स्कूल के लिए। स्कूल के लिए जब तैयार होकर आप घर से निकलते हैं, तो आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, कौन होते हैं बुजुर्ग? दादा दादी। उनके आपने चरण स्पर्श करके पेरेंट्स को, अपनी मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग कहते हुए स्कूल के लिए निकलना है। और स्कूल में आके किसको विश करना है फिर?
टीचर्स को, वेरी गुड। फिर आपने क्लास में सब टीचर्स का कहा मानना है, सबके रेस्पेक्ट करनी है और सभी बच्चों को आपस में प्यार से रहना है और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प करनी है ना। तो ऐसे बच्चे आप बनोगे। और इसके साथ आज जैसा कि हमें मालूम है गुरु नानक देव जी की भी जयंती है। उनका 2 शब्दों में ही मैं आपको संदेश देती हूँ। अभी आप बच्चों ने कितना बताया भी है कि उन्होंने कहा कि सदा कूल रहिए, है ना, शांत रहिए, गुस्सा नहीं करना। आपकी तो डायरेक्टर मैडम, प्रिंसिपल मैम आपने देखी है कितनी कूल है ना। आप इन्हीं को ही अपना सकते हो। और सत्य की राह पे चलो और सबसे ज़्यादा मानवता की सेवा करो। अगर हम ये 3 गुण भी अपने जीवन में धार लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरे साथ सभी बच्चे 4 प्रॉमिस करेंगे कि हम अच्छे और सच्चे बच्चे बनेंगे, खूब मेहनत करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और अपने देश को महान बनाएंगे। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, भारत माता की वंदे, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. Your message will surely resonate with all of us and motivate our young minds. Your presence has truly elevated this occasion. We are privileged to have you with us today. Every star shines, but some shines a little brighter because of their efforts and spirit. Today we celebrate those shining stars among us. It's now time for a very special moment of our assembly, the Star of the Month certificates. These certificates are not just papers, but reminders of dedication, discipline, and determination. As someone rightly said, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Let us now call upon our shining stars who have truly lived this thought through their actions. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your kind words and profound appreciation. With that, we come to the end of this wonderful celebration. Thank you everyone for being a part of it and making it memorable. Dear all, your presence truly added meaning to this event. Thank you for listening, for inspiration, for encouragement, for being here, and most importantly, for giving your time and making your presence. You are a wonderful audience, and we hope that we have been a good host equally. Once again, thanks to the hard work that all team members have done. Teachers, students, and every team member to make this possible. Thank you.